بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار ہم ریکال کرتے ہیں کہ ہم نے کس کس نبیوں کا واقعہ اب تک دیکھ لیا۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، پھر ہم نے دیکھا حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بعد ہم نے دیکھا حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، پھر ہم نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بعد 6ویں نمبر پر ہم نے دیکھا حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بعد ہم نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کے بعد پھر ہم نے دیکھا حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد اس کے بعد ہم نے دیکھا حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ ٹوٹل ہم لوگوں نے 10 نبیوں کے واقعے اب تک دیکھے۔ اب اس ویڈیو میں ہم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے کون؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے مصر کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ نبی تھے بنی اسرائیل میں جو مصر کی طرف بھیجے گئے تھے۔ مصر، اس کو انگلش میں ہم ایجپٹ کہتے ہیں، مصر یا پھر آپ ایجپٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے مصر کی طرف بنی اسرائیل کو بھیجے گئے نبی تھے۔ بنی اسرائیل یعنی کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ان کے بیٹے پوتے ان کی جنریشن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو ان کی جگہ پیدائش کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا مصر کی طرف بھیجے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے تھے ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے تھے، پر وہ پہلے مدین اور پھر یروشلم کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا تو مصر کی طرف ہوئے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی طرح انہوں نے بھی ہجرت کیا تھا۔ سب سے پہلے مدین کی طرف ہجرت کیا تھا، پھر اس کے بعد میں یروشلم کی طرف بھی ہجرت کیا تھا۔ وہ کیسے کیا دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا گناہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا گناہ بھی شرک تھا۔ وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے؟ اللہ کی ذات میں شرک کیا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی کہانی اللہ تعالیٰ کس طرح سے شروع کرتے ہیں، چلیے ہم دیکھتے ہیں۔ تو
सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी आती है सूरह कसस में आयत नंबर 1 से 43 तक। तो देखते हैं किस तरह से शुरू होती है। तासीन मीम। ये किताब रोशन की आयत है। ये किताब कुरान मजीद क्या है? रोशन किताब। हम सुनाते हैं आपको मूसा और फिरौन के कुछ अहवाल हक के साथ उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करे कि हम आपको मूसा और फिरौन के कुछ हालात सुनाते हैं हक के साथ उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं, जो ईमान ले आए उनके लिए हक के साथ हक है ये। तो फिरौन उस टाइम पर बादशाह था। मूसा अलैहिस्सलाम जब आए थे उस टाइम मिस्र का बादशाह फिरौन के हक में थी। फिरौन ये सिर्फ एक नाम नहीं है, फिरौन खानदान को कहते हैं। जिस तरह से निजाम कहते हैं हैदराबाद में निजाम खानदान, निजाम बादशाह नहीं था, निजाम खानदान था। उसी तरह फिरौन वो खानदान का था उस वक्त। वो बादशाह था, वहां पर एक बादशाह था फिरौनी खानदान से। लेकिन उसका नाम फिरौन कह गई, इसी तरह हम उसको जानते हैं कि फिरौन था। तो हम सुनाते हैं आपको मूसा और फिरौन के कुछ अहवाल हक के साथ उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। यकीनन फिरौन ने बहुत सरकशी की थी जमीन में, और उसने तकसीम कर दिया था उसके बागियों को ग्रोहों में। उसके बासियों को यानी रहने वालों को ग्रोहों में अलग अलग ग्रोह बनाकर तकसीम कर दिया था उन्हें सबको। उसने दबा रखा था उनमें एक ग्रोह को। वो उनके बेटों को जुबा कर देता था। एक ग्रोह को, ये वही ग्रोह था बनी इसराइल का जो याकूब अलैहिस्सलाम के औलादे थे। बासियों को ग्रोहों में उसने दबा रखा था उनमें से एक ग्रोह को। वो उनके बेटों को जुबा कर देता था और उनकी औरतों को जिंदा रहने देता था। यकीनन वो फसाद मचाने वालों में से था। उस वक्त क्या होता था, जो भी बेटा पैदा हुआ तो अगर किसी को लड़का पैदा हुआ तो उसको कत्ल कर देता था, और जो भी लड़की पैदा हुई उसको जिंदा रहने देता था। उसने दबा रखा था उनमें से एक ग्रोह को। वो उनके बेटों को तबाह कर देता था और उनकी औरतों को जिंदा रहने देता था। यकीनन वो फसाद मचाने वालों में से था। और हमने इरादा किया कि हम एहसान करें उन लोगों पर जो जमीन में दबा दिए गए थे, और हमने चाहा कि हम उन्हें इमाम बना दें और उन्हीं को हम वारिस भी बनाए। तो अल्लाह ताला ने क्या क्या उन लोगों पर एहसान किया और चाहा कि उनको इमाम बना दिया। जिस तरह अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वादा किया था कि उनके जनरेशन में उन लोगों को क्या करेगा, इमाम बनाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने साथ में ये भी कहा था कि मेरा वादा जालिमों को नहीं पहुंचा। तो और हमने इरादा किया कि हम एहसान करें उन लोगों पर जो जमीन में दबा दिए गए थे, और हम उन्हें इमाम बना दें और उन्हीं को हम वारिस भी बनाएं। और हम तमकन अता करें उनको जमीन में, और हम दिखा दे फिरौन, हामान और उनके लश्कर को वो कुछ जिससे वो डरते हैं। तो फिरौन वहां का बादशाह था, हामान उसका वजीर था फिरौन का। और हमने वही कर दी मूसा के वालदा को कि तुम उसे दूध पिलाती रहो, और जब तुम्हें उसके बारे में अंदेशा हो तो उसे दरिया में डाल देना। तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को अल्लाह ताला ने वही की कि जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए तो दूध पिलाते रहो इनको। अगर तुमको अंदेशा हो कि वो लोग इनको इसको कत्ल कर देंगे इस बच्चे को, तो उस वक्त क्या करो, एक टोकरी में डाल के दरिया में छोड़ दो। तो दरिया में बहा दो, हम देख लेंगे उसको। बिल्कुल अल्लाह ताला ने इस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा पर वही किया। और हमने वही कर दी मूसा की वालदा को कि तुम उसे दूध पिलाती रहो, और जब तुम्हें उसके बारे में अंदेशा हो तो उसे दरिया में डाल देना, और ना खौफ खाना और ना रंजीदा होना। हम उसे लौटाने वाले हैं तुम्हारी तरफ, और उसे बनाने वाले हैं रसूलों में से। तुम्हारी तरफ वापस लौटाएंगे और उसको रसूल बनाएंगे। तो उसे उठा लिया फिरौन के घर वालों ने ताकि वो बन जाए उनके लिए दुश्मन और परेशानी। यकीनन फिरौन, हामान और उनके सब लश्कर खता खाते। तो फिरौन के घर में से ही किसी ने उसको उठा लिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने मूसा अलैहिस्सलाम को पानी में बहा दिया,
तो जब बहते बहते वो फिरौन के किसी घर वालों को ही मिल गए। आगे हम देखेंगे वो फिरौन के बीवी को मिल गए थे, फिरौन के वाइफ को मिले थे मूसा अलैहिस्सलाम। वो अभी यहाँ पर मेंशन नहीं है, आगे हम देखेंगे। यकीनन फिरौन, हामान और उनके लश्कर सब खता कर हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, उनकी बीवी उनको उठा के ले जाकर उनको पाले। और फिरौन की बीवी ने कहा कि ये आंखों की ठंडक होगा मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, तुम इसे कत्ल मत करो। क्या अजब कि ये हमें कोई फायदा पहुंचाए, या हम उसे बेटा ही बना लें। और वो बिल्कुल बेखबर थे। तो फिरौन की बीवी ने क्या कहा, इसको कत्ल मत करो, हम उसको बेटा बनेंगे, हम अपने पास पालेंगे इसको। तो ये तुम्हारे किसी परेशानी नहीं करेगा बाद में, क्योंकि लड़कों को कत्ल कर देता था फिरौन उनके। तो इसको कत्ल मत करो, ये तुमको कोई परेशानी नहीं करेगा, हम इसे अपने पास पालेंगे। और मूसा की माँ का दिल हौसला छोड़ बैठा। करीब था कि वो इस राज को जाहिर ही कर देती, अगर हमने उसके दिल को मजबूत ना कर दिया होता, ताकि वो हो जाए ईमान वालों में से। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में ही चले गए, मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालदा ने फिरौन से बचाने के लिए पानी में छोड़ा। तो उनके वाइफ को मिल गए। तो फिरौन की वाइफ को मिले मूसा अलैहिस्सलाम, वो घर ले गए, उनके फिरौन के घर में ही चले चले गए, उनसे बचाने के लिए वो पानी में छोड़ा था, लेकिन उन्हें फिरौन के हाथ में फिर वो। तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा परेशान होके बोल देते थे अगर, लेकिन अल्लाह ने उन्हें संभाल लिया। और मूसा की माँ का दिल हौसला छोड़ बैठता। करीब था कि वो इस राज को जाहिर कर देती, अगर हमने उसके दिल को मजबूत ना कर दिया होता, ताकि वो हो जाए ईमान वालों में से। और उसने मूसा की बहन से कहा कि तू उसके पीछे पीछे जा। तो वो उसको दूर से देखती रही और उन्हें एहसास भी नहीं हुआ। तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन क्या कर रहे थे उस वक्त, उनका पीछा कर रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम को नदी में छोड़ने के बाद में मूसा अलैहिस्सलाम की बहन उनका पीछा कर रहे थे। और हमने उस पर पहले ही हराम कर दी थी तमाम दूध पिलाने वाली औरतें। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर गए, फिरौन के पास बीवी के पास मिल गए, उनके घर गए, तो अब उनके घर में पल रहे थे, लेकिन बच्चे थे वो अभी। तो उनको दूध पिलाने की जरूरत थी। और मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी औरत का दूध नहीं पी रहे थे, अल्लाह ताला ने उनके लिए हराम कर दिया, वो किसी भी औरत का दूध नहीं पी सकते थे। और हमने उस पर पहले ही हराम कर दी थी तमाम दूध पिलाने वाली औरतें। तो उस लड़की ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसे घर वालों के बारे में बताऊं जो तुम्हारे लिए इसकी परवरिश कर दे और उसकी खैरख्वाह भी हो। तो एक ऐसे घर वालों के बारे में बताओ जो इसकी परवरिश कर दे, इनको दूध पिला सकती वो औरत, बोल के वो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने उनसे कहा। तो यूं हमने उसे लौटा दिया उसकी वालदा के पास, ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें। तो उस तरह से क्या हुआ, फिर उनकी वालदा आकर उनको दूध पिलाई। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने उनसे कहा कि मैं एक औरत को जानती हूँ जो इसको दूध पिला सकती है, इस बच्चे को, और उनकी वालदा का रेफरेंस दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा, उनके मदर आकर उनको दूध पिलाए। फिर किसी और का दूध अल्लाह ताला हराम कर दिए थे उनके ऊपर। तो यूं हमने उसे लौटा दिया उसके वालिद वालदा के पास, ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें और वो रंजीदा ना हो, और उसे मालूम हो जाए कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं। और जब मूसा अपनी जवानी को पहुंच गया और हर लिहाज से तवाना हो गया, तो हमने उसे हुक्म और इल्म अता फरमाया, और उसी तरह हम बदला देते हैं नेकोकारों को। जब मूसा अलैहिस्सलाम जवानी को पहुंचे तो उनको नबूवत मिली, यानी कि हुक्म और इल्म अता किया अल्लाह ताला ने। और वो दाखिल हुआ ऐसे वक्त जवानी को पंजा, हाँ ये खत्म हुआ उसके बाद। और वो शहर में दाखिल हुआ ऐसे वक्त जबकि उसके बासी गफलत में
थे तो उसने वहां पाया दो अशखास को आपस में लड़ते हुए। तो एक बार मूसा अलैहिस्सलाम शहर में दाखिल हुए, शहर में टहल रहे थे, तो दो लोगों को झगड़ा करते हुए पाया उन्होंने जवानी के टाइम, जब नबूवत मिल गई थी। नहीं, नबूवत अभी नहीं मिली थी, नबूवत आगे जाकर मिली बाद में। लेकिन जब वहां आए थे तो दो लोगों से अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम ने दो लोगों को लड़ते हुए पाया आपस में। तो उसने वहां पाया दो इश्कास को आपस में लड़ते हुए। एक उसकी अपनी कौम में से था, यानी बनी इसराइल में से था, और दूसरा उसके दुश्मनों में से था, उसके दुश्मनों में से था, यानी कि इजराइली में, फिरौन में से। इजराइली में से तो बनी इसराइल में से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से एक था, और दूसरा फिरौनी था, फिरौन के लोगों में से था। तो मदद मांगी मूसा से उसने, जो उसकी कौम में से था। तो बनी इसराइल की कौम का आदमी उनसे क्या क्या मदद मांगा उसके खिलाफ, जो उसकी दुश्मन कौम से था। तो मूसा ने उसको एक मुक्का मार रसीद किया और उसका काम तमाम कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या करे, एक मुक्का मारे और उसका काम तमाम हो गया, वो आदमी मर गया, एक मुक्के में मर गया उन्हें। वो फिरौन का आदमी एक ही मुक्के में मर गया। वो पुकार उठा के, ये तो शैतान का अमल है, यकीनन वो दुश्मन है, खुला खुला गुमराह करने वाला। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो शैतानी अमल है, शैतानी अमल कर दिया मैं, ये तो गुनाह का काम कर दिया। यकीनन शैतान खुला गुमराह करने वाला है, बोल के पुकारो। अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, मैं तो अपनी जान पर जुल्म कर बैठा हूँ। और अल्लाह ताला को पुकारा और कहा कि ए मेरे परवरदिगार, मैं तो अपनी जान पर जुल्म कर बैठा हूँ, बस तू मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ने उसे बख्श दिया, यकीनन वही बड़ा बख्शने वाला, फरमाने वाला है। तो अल्लाह ताला से फौरी माफी मांगी और कहा कि "ए मेरे परवरदिगार, मैं तो अपनी जान पर जुल्म कर बैठा हूँ, बस तू मुझे बख्श दे।" तो अल्लाह ताला ने उनको क्या क्या माफ कर दिया। उसने कहा, परवरदिगार, बसबब उस एहसान के जो तूने मुझसे पर किया है, अब मैं कभी मददगार नहीं बनूंगा मुजरिमों का। अब मैं क्या करूंगा, कभी भी मुजरिमों का मददगार कभी नहीं बनूंगा। तो उसने सुबह के शहर में उस कैफियत में कि वो खौफजदा भी था और चौंका भी था। अब फिरौन के एक आदमी का कत्ल कर दिया था, तो डर था उनको कि फिरौन कुछ करेगा बोल के, इसी तरह डर में थे वो। और चौंकना भी था। तो अचानक उसने देखा कि जिस शख्स ने कल उससे मदद मांगी थी, वही आज फिर उससे फरियाद कर रहा है। मूसा ने उससे कहा कि तुम ही एक खुले हुए शरीर आदमी हो। तो जिस आदमी को कल देखा था कि बनी इसराइल का जो आदमी लड़ाई कर रहा था फिरौन के आदमी से, वही आदमी आज फिर किसी और फिरौन के आदमी से फिर से लड़ाई कर रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम देखे तो कहा कि जरूर तुम ही एक शरीर आदमी हो, तुम ही कर रहे असल लड़ाइयाँ झगड़े, बोलते कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे थे। क्योंकि एक दिन करे तो हो सकता था, चलो उसकी गलती थी, बोलेंगे आज भी कर रहे फिर लड़ाई, बोले तो तुम ही शरीर आदमी हो, तुम ही कर रहे लड़ाई, बोल के मूसा अलैहिस्सलाम उसको इस तरह से कहा। फिर जब उसे पकड़ना चाहा, उसको जो उन दोनों का दुश्मन था, वो चीख उठा, ए मूसा, तो जो दोनों का दुश्मन था, यानी कि फिरौन की कौम में से जो आदमी था, ए मूसा, क्या तुम मुझे भी कत्ल करना चाहते हो, जिस तरह तुमने कल एक शख्स को मार डाला था। तो कल जिस तरह से मार दिया था, उस तरह से मुझे भी मार देना चाहते हो क्या, बोलकर कहा। तुम सिर्फ ये चाहते हो कि तुम इस मुल्क में बड़े जाबिर बन जाओ, और तुम नहीं चाहते कि तुम इस्लाह करने वालों में से बनो। तुम नहीं चाहते कि इस्लाह करने वालों में से बनो, तुम बोल के तुम जबरदस्ती करना चाह रहे, बोल के इस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम से कहा। और एक शख्स आया शहर के आखिरी किनारे से दौड़ता हुआ। तो शहर के किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। अब वो शख्स कौन था, अल्लाह आलम, क्योंकि इसके बारे में सिर्फ इतना ही पता चलता है, वो कोई शख्स था भी या कोई अल्लाह ताला किसी फरिश्ते को भेजे थे, खैर अल्लाह आलम। और एक शख्स आया शहर के आखिरी किनारे से दौड़ता हुआ, उसने कहा, ए मूसा, यानी हुकूमत तुम्हारे बारे में मशवरा कर रहे हैं कि तुम्हें कत्ल कर दे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के आदमी को कत्ल कर दिया था। तो फिरौन का हुक्म आया था कि मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दो।
हुकूमत की तरफ से, यानी हुकूमत तुम्हारे बारे में मशवरा कर रहे हैं कि तुम्हें कत्ल कर दे, तो तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह में से हूँ। तो वो निकला वहां से डरते डरते, बड़ा चौंका हुआ होकर, और उसने दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे इन जालिमों की कौम से निजात दे दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वहां से निकल गया और दुआ की कि इन जालिमों की कौम से मुझे निजात दे दे, मुझे बचा ले। और जब उसने मदयन की तरफ रुख किया, उसने कहा, उम्मीद है मेरा रब सीधे रास्ते की तरफ मेरी रहनुमाई करेगा। तो मदयन की तरफ हिजरत कर गया। मदयन, इससे पहले हमने देखा कि शोएब अलैहिस्सलाम की जगह थी, मदयन शोएब अलैहिस्सलाम की कौम थी। लेकिन अब ये एग्जैक्टली वही वक्त का है कि शोएब अलैहिस्सलाम जिस वक्त पे थे, मूसा अलैहिस्सलाम एग्जैक्टली वही वक्त पे थे ये, या उसके बाद का किस्सा है, या उससे पहले का है, खैर अल्लाह आलम। लेकिन क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम मदयन की तरफ हिजरत कर गए थे इसी तरफ, तो इसकी वजह से ब्रॉडली ये कहा जाता है कि उसी टाइम का था। और वहां पर एक नेक शख्स भी मिला था मूसा अलैहिस्सलाम को, वो नेक शख्स शोएब अलैहिस्सलाम ही थे, इस तरह से कहा जाता है, ब्रॉडली कहा जाता है। बट खैर वो अल्लाह आलम, इसकी ना कोई दलील कुछ भी नहीं है, सिर्फ मदयन में हिजरत कर गए इसके वजह से अब वो मदयन में शोएब अलैहिस्सलाम थे। अब वो मगर वही वक्त है या उसके बाद का वक्त है या उससे पहले का वक्त, वो भी हमको पता नहीं है, खैर अल्लाह वाला। और जब उसने मदयन की तरफ रुख किया, उसने कहा, उम्मीद है मेरा रब सीधे रास्ते की तरफ मेरी रहनुमाई करेगा। और जब वो मदयन के कुएं पर पहुंचा, उसने उस पर लोगों के एक गिरोह को अपने जानवरों को पानी पिलाते हुए पाया। तो मदयन की तरफ जब पहुंचे तो एक मदयन में एक कुआं था, उस कुएं में लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए आ रहे थे। और उसने उनसे अलग दो औरतों को देखा जो रोके खड़े थी। उसने कहा, अपने जानवरों को रोके खड़े थी। उसने कहा, आप दोनों का क्या मामला है? इन्होंने कहा कि हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकते जब तक तमाम चरवाहे अपने जानवर निकाल ना ले जाएं। और हमारे वालिद बहुत ज्यादा बूढ़े हैं, हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं, हम वालिद आ नहीं सकते। हम लोग जानवरों को पानी पिलाने आए, लेकिन वहां पर सारे मर्द लोग थे, तो हम वहां पर, ये लोग हटे हुए तो हम जाके पिला सकते, नहीं तो हम नहीं, जब तक नहीं जा सकते। तो मूसा ने उन दोनों के लिए पानी पिला दिया, फिर साय की तरफ फिर आया तो उसने दुआ की, परवरदिगार, जो खैर भी तू मेरी झोली में डाल दे, मैं उसका मोहताज हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम पानी पी लेकर उन दोनों के जानवरों को पानी पिला दिए। पिलाकर वो दो लड़कियों को अपने जानवर दे दिए वापस। उसके बाद एक साय में आकर बैठ गए और बैठ के दुआ की के, परवरदिगार, जो खैर भी तू मेरी झोली में डाल दे, जो भी खैर तू तेरी तरफ से डाल दे, मैं उसका मोहताज हूँ। उतने में उसके पास उन दो में से एक लड़की शर्म व हया के साथ चलती हुई आई। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की वापस सच आकर कहा कि, उसने कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि वो बदला दे आपको उसका जो आपने हमारे लिए पानी पिला है। अब ये जो वालिद जो बुला रहे हैं, ये शख्स ब्रॉडली कहा जाता है कि ये शोएब अलैहिस्सलाम थे, लेकिन खैर अल्लाह आलम, इसके कोई डिटेल्स नहीं है। मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि वो बदला दें आपको उसका जो आपने हमारे लिए पानी पिलाया है। तो जब मूसा उसके पास आया और उसने उसे अपना सारा किस्सा सुनाया, उसने कहा, अब डरो नहीं, तुम निजात पा चुके हो जालिमों की कौम से। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहां गए, जाके उसके वालिद को अपना सारा किस्सा सुनाया, तो उन्होंने कहा कि डरो नहीं, अब तुम जालिमों से क्या कर चुके हो, निजात पा चुके हो। उन दोनों में से एक ने कहा, दो लड़कियों में से एक लड़की ने कहा कि अब्बा जान, आपने आप इनको मुलाजिम रख ले, आप क्या करें, इनको मूसा अलैहिस्सलाम को मुलाजिम रख ले, यानी कि काम पर रख ले। यकीनन बेहतरीन आदमी है जिसे आप मुलाजिम रखें, वही हो सकता है जो ताकतवर और अमीन हो। ये बहुत बेहतरीन आदमी है, ताकतवर भी है और अमीन यानी कि सच्चे भी हैं, तो आप इनको काम पर रख लें। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि अपनी उन दोनों बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं, दोनों बेटियों में से एक निकाह तुम्हारे साथ कर दूं, बोल के उस आदमी ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा।
मैं चाहता हूं कि अपनी उन दोनों बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं, उस शर्त पर कि तुम 8 साल तक मेरी मुलाजिमत करो। इस शर्त पे कि तुम 8 साल तक मेरे पास काम करो। महर में 8 साल तक शोएब अलैहिस्सलाम, शोएब अलैहिस्सलाम नहीं, जो भी थे, उनके वालिद को के पास काम करो बोलकर मूसा अलैहिस्सलाम को कहा। दोनों बेटों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं, उस शर्त पर कि तुम 8 साल तक मेरी मुलाजिमत करो। फिर अगर तुम 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारी तरफ से है, और मैं तुम्हें मशक्कत में डालने का कोई इरादा नहीं रखता। 8 साल तक काम करो, इसके बदले में मैं अपनी बेटी से तुम्हारा निकाह कर दूंगा। अगर तुम चाहो तो पूरी 10 साल कंप्लीट कर दो। शर्त 8 साल की है, लेकिन अपनी तरफ से 10 साल अगर कंप्लीट कर दियो तो अच्छा है ज्यादा, बोलकर इस तरह से बोले। मूसा ने कहा, यह बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एग्री कर लेकर तय कर दिया। इन दोनों में से जो मुद्दत भी मैं पूरी कर दूं, जो भी, चाहे 8 करूं या चाहे 10 करूं, जो भी मैं पूरी कर दूं, तो मुझ पर कोई ज्यादती ना हो, लेकिन उससे ज्यादा आप ज्यादती नहीं करना है। 8 तो भी करूं, 8 करूंगा मैं, 8 तो शर्त है। अगर 10 भी कर दिया तो कर दूंगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं करूंगा, और इससे ज्यादा मुलाजिमत, ज्यादती न मत करो मेरे ऊपर। मुझ पर कोई ज्यादती ना हो, और जो कुछ हम कह रहे हैं, अल्लाह उस पर वकील है। अल्लाह क्या है? वकील है, गवाह है, यानी कि। तो जब मूसा ने वो मुद्दत पूरी कर दी, मुद्दत पूरी कर दी मूसा अलैहिस्सलाम, चाहे 8 साल हो या 10 साल हो, वो मुद्दत पूरी काम कर दिया और अपने घर वालों को लेकर चला। तो उसने तौर पहाड़ के एक जानिब एक आग देखी। घर वालों को लेकर वहां से निकल गए। तो तौर पहाड़ पे जब जा रहे थे तो तौर पहाड़ की तरफ एक आग देखी, तो वहां से कुछ भी खाने पीने को हो सकता है, कुछ मिलेगा, या ठंडी से बचने के लिए कुछ मिलेगा, मैं देख के तुम्हारे लिए लेके आता हूँ, तुम यहीं रुको, बोलकर पहाड़ के ऊपर गए। तो जब मूसा ने वो मुद्दत पूरी कर दी और अपने घर वालों को लेकर चला, तो उसने तौर पहाड़ की एक जानिब एक आग देखी। उसने अपने घर वालों से कहा कि तुम लोग ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं वहां से तुम्हारे लिए कोई खबर ले आऊं। वहां एक आग देखी है, कोई खबर ले आओ, या कुछ भी खाना पीना जो भी हो सकता, कुछ भी ले आऊं, कोई खबर ले आऊं, या उस आग से कोई अंगारा, ताकि तो तुम ताप सको, या कि कोई अंगारी ले आओ, छोटे मोटा अंगारी ले आओ, ताकि तुम सर्दी ताप के सर्दी से बच सको। तो जब वो वहां पहुंचा तो उसे नदा दी गई, यानी कि आवाज दी गई। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे पहाड़ पे, तो वहां पर मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज दी गई, वादी के दाएं किनारे से। वो जो जहाँ भी पहाड़ पे कहते उसके दाएं तरफ से आवाज दी गई, किनारे से बाबरकत जगह में एक दरख्त के पास से आवाज दी गई कि ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ, तमाम जहानों का परवरदिगार। तो मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने वहां पर मूसा अलैहि सलाम से कलाम किया, अल्लाह ताला ने, और नबूवत दी, और कहा कि मैं ही अल्लाह हूँ, तमाम जहानों का परवरदिगार। और ये कि तुम अपनी लाठी डाल दो। तुम क्या करो, अपनी लाठी को नीचे डालो। तो जब उसने देखा कि वो हरकत कर रही है जैसे कि सांप हो, तो वो पीछे फिर कर भागा, और उसने पीछे मुड़कर भी ना देखा। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत की और कहा कि अपने लाठी को नीचे डालो। तो लाठी को मूसा अलैहिस्सलाम ने नीचे डाला, तो वो लाठी क्या हुई, एक सांप में तब्दील हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम डर के भागने लगे वहां से। तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, आगे आओ और डरो नहीं, तुम बिल्कुल मामून हो, यानी कि तुम सेफ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे आओ, डरो नहीं। अपने हाथ अपने गिरेबान में डालो। अपने हाथ को अपने गिरेबान में डालो। वो निकलेगा सफेद होकर, जब निकलेगा तो एकदम सफेद होगा, चमकता हुआ होगा, बगैर किसी बीमारी के। और अपना बाजू अपने साथ चिपका लो, खौफ से बचने के लिए। तो ये दो निशानियां हैं तुम्हारे रब की तरफ से फिरौन और उसके सरदारों की
तरफ। तो तुम्हारे रब की तरफ से ये निशानी है फिरौन और उसके सरदारों के लिए, फिरौन के लोगों के लिए। यकीनन वो बड़े नाफरमान लोग हैं, बहुत नाफरमान लोग हैं वो लोग। तो जाओ, यानी कि अल्लाह ताला ने नबूवत दी और कहा कि जाओ जाके फिरौन को दावत दियो इस्लाम की। उसने कहा, परवरदिगार, मैंने उनमें से एक शख्स को कत्ल कर दिया था, चुनांचे मुझे अंदेशा है कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। उसमें से उन लोगों में के एक आदमी को मैं कत्ल कर दिया था, तो मेरे को ये डर है कि वो लोग मेरे को कत्ल कर देंगे। और मेरा भाई हारून मुझसे ज्यादा फसी जबान वाला है, यानी कि साफ जबान वाला है। हारून मूसा अलैहि सलाम के भाई थे, हारून अलैहि सलाम ये भी एक नबी थे। तो वो क्या थे, पर साफ जबान वाले थे। मूसा अलैहि सलाम क्या है, थोड़ा लड़खड़ाते थे बात करने में। हारून अलैहि सलाम साफ जबान वाले थे, अच्छी तरह बात करते थे। और मेरा भाई हारून मुझसे ज्यादा फसीह जबान वाला है, तो उसे मेरे साथ मददगार के तौर पर भेज, ताकि वो मेरी तस्दीक करे। मुझे अंदेशा है कि वो मुझे जुटला देंगे। तो हारून क्या है, मेरे भाई हारून ज्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं मेरे से, तो उनको भी मेरे साथ भेज, ताकि वो मेरी बात उनको अच्छे से समझा सके। मुझे ये डर है कि वो हम लोग मुझे जुटला देंगे। अल्लाह ने फरमाया, हम तुम्हारे बाजू को मजबूत कर देंगे तुम्हारे भाई के जरिए। तुम्हारे भाई के जरिए तुम्हारे बाजू को हम क्या करेंगे, मजबूत कर देंगे। और हम दोनों के लिए ऐसा रौब पैदा कर देंगे कि वो तुम्हें हाथ नहीं लगा सकेंगे, हमारी निशानियों की बदौलत। तुम दोनों और तुम्हारे पैरोकार सब गालिब रहेंगे। तो जब मूसा पहुंचा उनके पास हमारी रोशन निशानियां लेकर, तो मूसा अलैहि सलाम को वही मिलने के बाद मूसा अलैहि सलाम गए उनके पास निशानियां लेकर, हारून अलैहि सलाम के साथ में थे। इन्होंने कहा कि ये कुछ भी नहीं सिवाय गढ़े हुए जादू के, और हमने ऐसी कोई बात अपने पहले अब्बा व अजदाद में नहीं सुनी। तो ये सिर्फ एक जादू है और कुछ भी नहीं है, और जो तुम कह रहे हो सिर्फ एक खुदा की बात करो, हम हमारे अब्बा अजदाद ऐसा नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने कहा, फिरौन और उसके लोगों ने। और मूसा ने कहा, मेरे परवरदिगार खूब जानता है उसको जो हिदायत लेकर आया है उसकी तरफ उसकी तरफ से, और वही खूब जानता है किसके लिए दार आखिरत का अच्छा अंजाम है। यकीनन जालिम लोग फला नहीं पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उनसे कि मेरा परवरदिगार खूब जानता है उसको जो हिदायत लेकर आया, यानी कि मैं हिदायत लेकर आया हूँ तुम्हारी तरफ, उसकी तरफ से। और किसके लिए दार आखिरत का अच्छा अंजाम है, और आखिरत का अच्छा अंजाम है। यकीनन जालिम लोग फला नहीं पाएंगे। जो लोग जालिम होते हैं वो फला नहीं पाते, कामयाब नहीं होते। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस तरह से फिरौन से कहा। और फिरौन ने कहा, ए दरबारियों, माफ करना। और फिरौन ने कहा, ए दरबारियों, मैं तो अपने सिवा तुम्हारे लिए किसी को माबूद नहीं जानता। तो फिरौन क्या कहा, मैं तो किसी को माबूद नहीं जानता तुम्हारे लिए अपने सिवा, यानी कि फिरौन ने कहा कि मैं हूँ खुदा हूँ। कोई अल्लाह, मेरे अलावा कोई अल्लाह नहीं है, मैं अल्लाह हूँ, मैं खुदा हूँ, इस तरह से उसने कहा, नौजुबिल्ला। और फिरौन ने कहा, ए दरबारियों, मैं तो अपने सिवा तुम्हारे लिए किसी माबूद को नहीं जानता। तो ए हामान, हामान उनका वजीर था, फिरौन का वजीर था। तो ए हामान, जरा तुम मेरे लिए मट्टी की ईंटों को आग से पुख्ता करो, मट्टी की ईंटें बनाओ और आग से पुख्ता करो। फिर मेरे लिए एक ऊंचा महल बनाओ, एक महल बनाओ, ताकि मैं झांक सकूं मूसा के माबूद को। और मैं तो समझता हूँ कि वो झूठा है। तुम एक काम करो, ईंटों से एक बहुत बड़ा महल बनाओ मेरे लिए, मैं उस पर चढ़कर देखूंगा मूसा का माबूद कौन है। लेकिन मैं तस्वुर करता हूँ कि वो झूठा है, बोलकर फिरौन ने इस तरह से हामान को कहा। हम्म। और जमीन में नाहक तकब्बुर किया उसने भी, और उसके लश्करों ने भी, और इन्होंने समझा कि वो हमारी तरफ लौटाए नहीं जाएंगे। तो फिरौन और फिरौन के लोगों ने तकब्बुर किया, और वो लोग समझते थे कि वो अल्लाह की तरफ लौटाए नहीं जाएंगे। और हमने पकड़ लिया उसको भी और उसके लश्कर को भी। फिर हमने फेंक दिया इन्हें समंदर में,
तो अल्लाह ताला ने क्या किया, फिरौन को और फिरौन के लश्कर को समंदर में डुबो दिया। आ, वो मशहूर वाकया जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां से समंदर में से अल्लाह के हुक्म से लाठी मारे समंदर के बीच में, तो समंदर दो टुकड़े हो गया। रास्ते में दोनों दो तरफ, एक तरफ टुकड़ा इस तरफ, एक तरफ टुकड़ा इस तरफ हो गया, और मूसा अलैहिस्सलाम उनके कौम बीच से निकल गए। और जब फिरौन उनके पीछे आ रहा था, तो अल्लाह ताला ने पानी वापस मिलाकर फिरौन और उसके लश्कर को डुबो दिया। फिर हमने फेंक दिया उन्हें समंदर में, तो देख लो क्या अंजाम हुआ जालिमों का। और हमने बना दिया उन्हें इमाम आग की तरफ बुलाने वालों और हमने बना दिया उन्हें इमाम आग की तरफ बुलाने वाले, और कयामत के दिन उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी। तो वो लोग क्या है, सबको आग की तरफ यानी कि जहन्नम की तरफ बुलाते थे। और हमने उनके पीछे लानत लगा दी इस दुनिया में भी, और कयामत के दिन वो बहुत ही बुरे हाल वालों में से होंगे। वो लोग क्या होंगे, बहुत बुरे हाल में होंगे। और हमने मूसा को किताब अता फरमाई उसके बाद कि हमने पहली जमातों को हलाक कर दिया था। तो पहली जमातों को यानी फिरौन वालों को हलाक कर दिया था। उसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर आ गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या की, किताब दी, तौरात दी। लोगों की आंखें खोलने के लिए कि तौरात किताब दी यानी कि शरीयत दी लोगों के लिए, आंखें खोलने के लिए थी, और हिदायत और रहमत थी ताकि वो नसीहत हासिल करे। उसके बाद आगे अल्लाह ताला सूरत तौहा में इरशाद फरमाते हैं कि आयत नंबर 9, वर्स नंबर से लेके 99 तक बहुत बड़ा, मूसा अलैहिस्सलाम का आका बहुत बड़ा वाकया है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाए थे, इन्होंने अल्लाह की आयत को फरोख्त किया फिर सिर कीमत की, और बस वो लोगों को रोकते रहे अल्लाह के रास्ते से। यकीनन बहुत ही बुरा है जो कुछ ये कर रहे हैं। तो बाद में तो रात इंजील जो भी आए, वो लोग क्या करते हैं, उसको बदलते रहते थे। वो तो सॉरी, मैंने सॉरी सॉरी और सूरा पढ़ लिया मैंने, पूरे तोहा। राइट। हाँ हाँ। तो अल्लाह ताला ऐसा फरमाते, और क्या आप तक पहुंची है मूसा की खबर, मूसा अलैहिस्सलाम की खबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा रहे अल्लाह ताला, और कह रहे हैं, जब उसने एक आग देखी तो उसने अपने घर वालों से कहा कि आप जरा ठहरिए, मुझे आग नजर आई है, ताकि मैं ले आऊं तुम्हारे लिए उसमें से कोई अंगारा, या फिर अंगारा, या मैं पाऊं उस आग से कोई रहनुमाई, कुछ अच्छी तरह से वहां से कुछ ले आओ तुम्हारे लिए बोलकर। ये वही वाकया फिर जब 10 साल या 8 साल कंप्लीट करने के बाद वहां से निकले, तो रास्ते में तोर पहाड़ पर जो आग दिखी, वो वाकया अल्लाह ताला फिर से साथ फरमाते रहे। फिर जब वो आया उसके पास, तो आवाज दी गई, ए मूसा, ये ये तो मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, चुनांचे अपने जूतियां उतार दो, क्योंकि उस वक्त तुम मुकद्दस वादी तोहा में हो। तो अपनी जूतियां उतर कर आओ, क्योंकि तुम मुकद्दस जगह पर आए हो, और मैंने तुमको चुन लिया है। तो अब जरा तवज्जो से सुनो जो वही तुम पर की जा रही है। यकीनन मैं ही अल्लाह हूँ, कोई और माबूद नहीं है सिवाय मेरे। बस तुम मेरे ही बंदगी करो, और नमाज कायम रखो, और मेरी याद किया करो। मेरी याद के लिए नमाज कायम करो और मेरी बंदगी करो। बेशक कयामत आकर रहेगी, अल्लाह ताला कह रहे बेशक कयामत आकर रहेगी, मैं उसे मख्फी ही रखूंगा। मख्फी ही रखूंगा यानी कि सीक्रेट रखूंगा, यानी कि छुपा कर रखूंगा। सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं कि कयामत कब आएंगी, कैसे आएंगी, उसके अलावा और कोई नहीं जानता। मख्फी ही रखूंगा ताकि बदला दिया जाए हर जान को जो उसने कोशिश की हो। तो तुम्हें उससे रोगरदा ना कर दे कोई ऐसा शख्स जो उस पर ईमान नहीं रखता, और जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है। तो कोई तुम्हें सच्ची राह से भटका ना दे।
जो ख्वाहिशात की अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं रखता। करता है, अगर ऐसा हुआ तो तुम हलाक हो जाओगे। और ए मूसा, ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? तो अल्लाह ताला ने कहा दाहिने हाथ में क्या है बोलकर पूछे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरा आसा है, उनकी लकड़ी है थी। मैं उसे इस पर टेक भी लगा लेता हूँ और उससे अपनी बकरियों के लिए दरख्तों से पत्ते भी झाड़ लेता हूँ, और उसमें मेरे लिए और भी कई काम होते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ए मूसा, उसको जरा फेंको तो सही, नीचे डालो। तो उन्होंने उसे फेंक दिया तो वो दफ्तन एक सांप बन गया, दौड़ता हुआ वो एक सांप में तब्दील हो गई लकड़ी। फरमाया उसको पकड़ लो और डरो नहीं, अभी हम उसको लौटा देंगे उसकी पहली हालत में। तो मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि उसको पकड़ो, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ा तो वापस पहली तरह लकड़ी बन गई। और जरा अपना हाथ मिलाओ अपने बगल के साथ, वो निकलेगा चमकता हुआ बगैर किसी बीमारी के। ये दूसरी निशानी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बगल बगल में हाथ डाला तो बाहर निकला तो वो जोरदार चमक रहा था, ताकि हम अपनी बड़ी निशानियों में से कुछ निशानी तुम्हें दिखाएं। अब तुम जाओ फिरौन की तरफ, वो बड़ा सरकश हो गया है, वो बड़ा सरकश आने के जालिम हो गया है। मूसा ने अर्ज किया ए मेरे परवरदिगार, मेरे लिए मेरे सीने को खोल दे और मेरे इस काम को मेरे लिए आसान कर दे। मेरे सीने को खोल, यानी मेरे को हिदायत दे और इस काम को आसान कर मेरे लिए। और मेरी जबान की गिरा को खोल दे, और मेरी जबान को खोल दे, जो मैं जिस तरह से प्रॉब्लम होती थी उनको बात करने में, उसको खोल दे और अच्छी तरह से समझाने की तौफीक दे। मेरी बात को वो अच्छी तरह समझ सके, और मेरे लिए एक वजीर भी बना दे मेरे खानदान में से, मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी दे मेरे को। उसके जरिए से मेरी कमर को मजबूत कर दे, मेरी कमर को क्या कर मजबूत कर उसके जरिए, और उसे मेरे इस काम में शरीक बना दे, ताकि हम तेरी तस्बीह करें कसरत के साथ और तेरा जिक्र करें कसरत के साथ। यकीनन तू हमें देख रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया ए मूसा, तुम्हें अता कर दिया गया जो तुमने तलब किया, और हम तो तुम पर एहसान कर चुके हैं एक मर्तबा पहले भी, जो तुमने तलब किया, यानी कि हारून अलैहिस्सलाम को तुमको अता कर दिया गया, हारून अलैहिस्सलाम तुम्हारे साथ होंगे। तो हारून अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने नबी बना दिया। और हम तो तुम पर एहसान कर चुके हैं एक मर्तबा पहले भी, हम पहले भी एहसान किए हैं तुम पर, जब हमने तुम्हारे वालदा की तरफ वही की थी जो वही की जा रही है। फिर वो वाकया वापस से अल्लाह ताला थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाके उनको सुना रहे, जो वही होकर जिस तरह से उन्होंने किस तरह से फिरौन के घर में पले बड़े। कि उसको एक संदूक में बंद करो, फिर उसे दरिया में डाल दो, चुनांचे दरिया उसे साहिल पर डाल देगा, उसको उठा ले जाएगा वो जो मेरा भी दुश्मन है और उसका भी दुश्मन है। मैंने तुम पर अपनी मोहब्बत का पर तो डाल दिया, ताकि तुमको पाला जाए मेरी आंखों के सामने। तो फिरौन के घर में ही क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम उसके बाद पले पड़े। जब तुम्हारी बहन चलती जा रही थी तो उसने कहा क्या मैं तुम्हें बताऊं इसके बारे में जो उसके किफालत करे। तो यूं हमने लौटा दिया तुम्हें तुम्हारी वालदा की तरफ, ताकि उसकी आंख ठंडी रहे और वो गम ना खाए। और तुमने इस एक शख्स को कत्ल कर दिया, उसके बाद जवान होने के बाद में फिरौन के घर में पले बड़े। जब उसके बाद में जवान होने के बाद में एक शख्स को कत्ल कर दिया तो उसके वो वाकया फिर अल्लाह ताला फ्लैशबैक सुना रहे हो। और तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया तो हमने तुमको उस गम से भी निजात दिलाई, और फिर हमने तुम्हें मजीद बहुत सी आजमाइशों से गुजारा। फिर तुम कई साल अहले मदियन में रहे। फिर तुम यहाँ आ गए एक तयशुदा फैसले के मुताबिक, ए मूसा।
और मैंने तुमको बनाया है खास अपने लिए। जाओ तुम और तुम्हारा भाई मेरी उन निशानियों के साथ, और मेरे जिक्र से सुस्ती ना करना। तुम और तुम्हारा भाई हारून मिल जाओ, मेरे निशानियां लेकर दोनों, और मेरा जिक्र करो, सुस्ती मत करो उसमें। जाओ तुम दोनों फिरौन के पास, यकीनन वो बहुत सरकश हो गया है। तो उसके साथ नरम बात करना, शायद के उस तरह से वो सोचे या डरे। तो जाके नरम तरीके से बात करो उससे, आए प्यार से समझाओ उसको, तो वो सोचे या फिर डरे अल्लाह से। इन्होंने अर्ज किया, ए हमारे परवरदिगार, हमें अंदेशा है कि वो हमारे ऊपर भड़क उठेगा या ज्यादती करेगा। फरमाया, तुम डरो नहीं, यकीनन मैं तुम दोनों के साथ हूँ। मैं हर बात सुनता हूँ और देखता रहूंगा। फिर तुम दोनों जाओ उसके पास और उससे कहो कि बिलाशुबा हम दोनों रसूल हैं तेरे रब के जानिब से, बस हमारे साथ भेज दे बनी इसराइल को, और उन्हें अजाब में मुब्तला मत रख। यकीनन हम आए हैं एक निशानी लेकर तेरे रब की तरफ से, और सलामती उन पर है जो हिदायत का इत्बा करेगा। तो उन लोगों ने फिरौन के पास आकर कहा कि बस तुम दोनों जाओ के फिरौन के पास और उससे कहो कि बिलाशुबा हम दोनों रसूल हैं। उन्होंने कहा, हम दोनों रसूल हैं तेरे रब की जानिब से, अल्लाह ताला की तरफ से। बस हमारे साथ भेज दे बनी इसराइल को, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को, बनी इसराइल जो ग्रुप को अलग करके जुल्म कर रहा है, तू हमारे साथ भेज दे उनको, और उन्हें अजाब में मुब्तला मत रख। यकीनन हम आए हैं एक निशानी लेकर तेरे रब की तरफ, और सलामती उन पर है जो हिदायत का इत्बा करे। हमारी तरफ ये वही की जा चुकी है कि उस पर अजाब आएगा जिसने झुटलाया और मुंह फेर लिया। फिरौन ने कहा कि ए मूसा, तुम दोनों का रब है कौन? तो फिरौन पूछा, कौन है तुम दोनों का रब? बिल्कुल पूछा उनको। मूसा ने कहा, हमारा रब वो है जिसने हर शय को उसकी खलकत अता की, फिर हिदायत दी। हर शय को क्या किया? हर चीज को उसके उसका शय पता किया, हर चीज को, चाहे इंसान, जानवर, परिंद, सूरज, चांद, आसमान, हर चीज को उसका शय अता किया, हर शय को उसकी खलकत अता की, फिर हिदायत दी। फिरौन ने कहा, तो फिर पहली नस्लों का क्या हाल होगा? मूसा ने कहा कि उनका इल्म मेरे रब के पास एक किताब के अंदर है। मेरा रब ना तो भटकता है और ना ही भूलता है, अल्लाह ताला कुछ भूलता नहीं है। वही जिसके जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया, जिसने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया और उसमें तुम्हारे लिए रास्ता बनाया, और आसमान से पानी नाजिल किया। फिर हमने उससे निकाले तरह तरह के नबातात, आसमान से पानी नाजिल किया और तबाह तबाह के नबातात, यानी के फल वगैरह जो भी है निकाले उसमें से। खाओ तुम खुद भी और चराओ अपने मवेशियों को भी, यकीनन उसमें निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए, अक्लमंद लोगों के लिए उसमें क्या है? निशानी है। उसी से हमने तुम्हें पैदा किया है और उसी में हम तुम्हें लौटाएंगे, और उसी में से हम तुम्हें एक मर्तबा फिर निकालेंगे। तो उसी से, यानी कि मट्टी से अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, उसी में वापस लौटाएंगे, मरने के बाद फिर मट्टी बन जाएगा इंसान, मट्टी में दबा दफन होगा, फिर मट्टी बनेगा, उसके बाद फिर उसी में से फिर लौटाए जाएंगे, फिर उठाया जाएगा। और हमने उसको दिखा दी अपनी सारी निशानियां, फिर भी उसने झुटलाया और इनकार किया, और तमाम निशानियां दिखाई उसके बाद भी फिर ने इनकार कर दिया। उसने कहा, ए मूसा, क्या तुम हमारे पास उसलिए आए हो ताकि अपने इस जादू के बल पर हमें हमारी सरजमी से निकाल बाहर करो? जादू बोलकर इल्जाम लगा दिया फिर, जादू है ये, तो सिर्फ एक जादू है बोलकर कहा। तो हम भी जरूर लाएंगे तुम्हारे मुकाबले में ऐसा ही जादू। तो मुयन कर लो हमारे और अपने माबीन वादे का एक मुकर्रर वक्त, ना हम उसके खिलाफ वर्जी करेंगे और ना तुम करना, एक खुले मैदान में। तो एक खुले मैदान में जमा हो करेंगे बोल के फिर चैलेंज करा। एक खुले मैदान में जमा होंगे, सबको जमा करेंगे, तुम भी आओ मैं भी आता हूँ, तमाम पूरी पब्लिक को भी, आम पब्लिक को बुलाएंगे, सबके सामने हम हमारे जादूगरों को भी बुलाते, देखेंगे हम भी डालते हमारा जादू तुम्हारे सामने, हमारे जादूगरों को बुलाकर बोलकर उसने कहा।
मूसा ने कहा, तुम्हारे वादे का दिन होगा जश्न का दिन, और ये कि लोग जमा कर लिए जाएं, दिन चढ़े लोगों को भी जमा कर लिए जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम एग्री कर लिए। और अब फिरौन ने रुख फेरा, चुनांचे उसने अपने सारे हथकंडे जमा कर लिए। फिर वो आ गया। मूसा ने उन्हें कहा, तुम्हारी बदबख्ती अल्लाह पर झूठ मत गढ़ो कि वो तुम्हें गारत कर दे किसी अजाब के जरिए से, और यकीनन वो नाकाम हुआ जिस किसी ने भी इफ्तरा किया। तो जिस किसी ने भी झूठ कहा और अल्लाह को झुठलाया वो नाकाम हुआ। जब फिरौन हार गया शरत, तो मूसा अलैहिस्सलाम जीत गए, तो भी उसके बाद भी फिरौन झुठलाया उन्होंने। तो वो बाहम झगड़ पड़े अपने उस मामले में, और फिर लगे चुपके चुपके मशवरा करने। इन्होंने कहा कि ये दोनों जादूगर ही हैं जो चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से निकाल बाहर कर दें अपने जादू से, और तुम्हारी मिसाली तहजीब को बर्बाद कर दे। फिरौन अभी भी वही कर रहा है। हाँ, फिरौन और उसके लोग अभी भी वही कह रहे हैं कि ये दोनों जादूगर है, कि तुमको निकालना चाह रही हूँ फिरौन के दुनिया का, इस तरह से निकाल देंगे तुमको अपनी सरजमीन से बढ़कर। चुनांचे तुम मुस्तमा करो अपनी सारी तदबीरें और अपने वसाइल व ज़राए, फिर आओ सब बांध कर, और आज कामयाब वही रहेगा जो गालिब आएगा। जादू करो जादूगरों ने कहा, ए मूसा, क्या तो तुम पहले डालो या फिर हम ही पहले डालने वाले बनते हैं। तो अब वो किस तरह से पेश आया, किस तरह से हारा फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम जीते, उसकी भी डिटेल अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं। तो जब जादूगर मैदान में आए, और तो उन्होंने कहा कि ए मूसा, या तो तुम पहले डालो या फिर हम ही पहले डालने वाले बनते हैं, या फिर हम पहले डालेंगे। मूसा ने कहा, बल्कि तुम ही डालो, डालो तुम लोग ही डालो पहले। तो दफ्तन उनके रस्सियां और लाठियां उनके जादू के असर से उसको ऐसे नजर आने लगी, गोया गोया वो दौड़ रही हो। उन लोग अभी रस्सियां और लाठियां डाले, तो उन लोगों के जादू की वजह से वो ऐसे नजर आने लगी कि वो दौड़ने लगी, हिल रही डुल रही बोलकर उन लोगों को नजर आने लगा। और रस्सियां और लाठियां डाल तो ऑब्वियसली वो भी एक शाम की तरह नजर आने लगा, उन लोगों को नजर आने लगा। एक्चुअली में चेन्नई वहां लोगों को इस तरह से नजर आया लोगों को। तो मूसा ने अपनी जी में कुछ डर महसूस किया, तो मूसा अलैहिस्सलाम को पहले तो डर हुआ। हमने फरमाया कि डरो नहीं, यकीनन तुम ही गालिब रहोगे। अल्लाह ताला ने कहा कि डरो नहीं मूसा, तुम ही गालिब रहोगे, तुम ही जीतोगे। अब तुम जरा फेंको उसको जो तुम्हारे दाएं हाथ में है। तो अब तुम्हारे दाएं हाथ में जो है तुम्हारा आसा, तुम्हारी लकड़ी फेंक, ये निकल जाएगा उस सबको जो कुछ इन्होंने बनाया है। ये जो जादू इन्होंने किया सबको निकल जाएगा वो शाम फुट कर बोलकर कहा, जो कुछ इन्होंने बनाया है। ये तो बस एक फरेब है जादूगर का, और जादूगर कभी कामयाब नहीं हुआ करता। वो लोग जो लोग बनाए हैं, जिस तरह से शाम बनाए, वो असल में चेंज नहीं हुए हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि वो ये सिर्फ एक फरेब है, एक जादूगर का झूठ मूठ है वो। तुमको दिख रहा वैसा हुआ बोल के, मगर वैसा कुछ भी नहीं है। तुम अपनी लाठी फेंको, वो उनके जादू को निकल जाएगा। और जादूगर कामयाब नहीं हुआ करता, चाहे कहीं से भी आए। बस गिरा दिए गए जादूगर सजदे में, वो पुकार उठे कि हम ईमान ले आए हारून और मूसा के रब पर। लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि उनका मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी सच में सांप में तब्दील हो गई और उनके जादू को खा लिया, तो वो लोग फिरौन के जादूगर क्या किए, फिरौन ईमान नहीं ले आए, लेकिन फिरौन के जो जादूगर आ देखे, वो क्या करे, फौरी ईमान ले आए। बस गिरा दिए गए जादूगर सजदे में, वो पुकार उठे कि हम ईमान ले आए हारून और मूसा के रब पर। फिरौन ने कहा, तुम उस पर ईमान ले आए हो उससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत देता। यकीनन यही तुम्हारा गिरोह है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। तो मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ समतों से काट डालूंगा। तो फिरौन को गुस्सा आया, और उसने कहा कि मेरी इजाजत के बगैर तुम मेरे अलावा किसी और रब को कैसे बांध सकते हो। तो मैं तुम्हारे हाथ और पैर काट दूंगा, और तुम्हें खजूर के तनों पर सूली दूंगा, और यकीनन तुम्हें मालूम हो जाएगा
कि हम में से कौन ज्यादा सख्त सजा देने वाला है और कौन ज्यादा बाकी रहने वाला है। इस तरह से फिरौन ने जादूगरों से कहा जो ईमान ले आए थे। इन्होंने कहा, अब हम तुम्हें हरगिज तरजीह नहीं दे सकते इन वादे दलाइल पर जो हमारे पास आ चुके हैं। अब इतनी वादे दलाइल आ गए हमारे पास, खुली निशानी आ गई, उसके बाद तरजीह नहीं दे सकते तुम लोगों, जो हमारे पास आ चुके हैं, और उस जात पर जिसने हमें पैदा किया है। चुनांचे तू कर ले जो कुछ तुझे करना है। तो तू सिर्फ फैसला कर सकता है और उसी दुनिया की जिंदगी का। हम अपने रब पर ईमान ला चुके हैं ताकि वो बख्श दे हमारे खताओं को और उस जादू को जिस पर तूने हमें मजबूर किया। अल्लाह ही बेहतर है और बाकी रहने वाला है। तो जादूगरों ने कहा कि हम अपने रब पर ईमान ला चुके हैं ताकि वो बख्श दे हमारी खताओं को, हमसे जो पहले खताएं हुई थी उसको वो बख्श दे, और उस जादू को जिस पर तूने हमें मजबूर किया, और ये जादू करने पे तुमको हमको मजबूर किया था, इससे भी माफ करे। और अल्लाह ही बेहतर है और बाकी रहने वाला। यकीनन जो कोई आएगा अपने रब के पास मुजरिम की हैसियत से, तो उसके लिए जहन्नम ही है। ना वो उसमें मरेगा और ना ही जिएगा। तो उसमें मरेगा ना ही उसमें जिएगा। जहन्नम में ना मरेगा ना बराबर जी सकेगा। वो जो कोई आएगा उसके पास मोमिन की हैसियत से, उसने नेक अमाल भी किए हों, तो ये लोग हैं जिनके लिए आला दर्जात होंगे। आला दर्जात यानी बड़ी दर्जात होंगे, बड़ी वैल्यू होंगी। हम्म। रहने के ऐसे बागात जिनके दामन में नहरें बहती होंगी। ऐसे बागात गार्डन्स होंगे जिसमें नहरें बहती होंगी और उनमें हमेशा रहेंगे। और यही बदला है उसका जिसने अपने आप को पाक किया। और हमने मूसा को वही कर दी थी कि मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ, बस उनके लिए समंदर के अंदर एक खुश्क रास्ता बना लो, ना पकड़े जाने का खौफ हो और ना कोई अंदेशा हो। तो जब फिरौन नहीं मान रहा तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि रातों रात लेकर कौम को लेकर बनी इसराइल को लेकर निकल जाओ, समंदर में रास्ता बना लो। अल्लाह ताला समंदर में रास्ता बनाएंगे, तो वहां से निकल जाओ। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारा तो समंदर में रास्ता बन गया, तो वहां से निकल जाओ। बस उनके लिए समंदर में के अंदर एक खुश्क रास्ता यानी कि सूखा रास्ता बना लो, ना पकड़े जाने का खौफ हो और ना कोई अंदेशा। तो फिरौन ने उनका ताकुब किया अपने लश्करों के साथ। फिरौन अपने लश्कर अपनी फौज लेकर उनके पीछे गया जब फिरौन को पता चला तो, लेकिन अल्लाह ताला ने फिरौन को डुबो दिया। तो ढांप लिया उन्हें समंदर में से जिस चीज ने भी ढांप लिया, समंदरों में डूब गए वो लोग। और फिरौन ने अपनी कौम को गुमराह किया और हिदायत ना दी। फिरौन क्या किया, अपने कौम को गुमराह कर दिया। ए बनी इसराइल, हमने तुम लोगों को निजात दी तुम्हारे दुश्मन से। तुम्हारे दुश्मन से, फिरौन से निजात दी तुमको। बनी इसराइल यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद। इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम को लक़ब मिला था। बनी इसराइल यानी कि उनके बेटे पोते, उनकी तमाम जनरेशन। ए बनी इसराइल, हमने तुम लोगों को निजात दी तुम्हारे दुश्मन से। फिर हमने तुम लोगों को बुलाया कोहे तूर की दाहिनी जानिब, और तुम पर मनवा सलवा नाजिल किया। उसके बाद वहां पर क्या किया, अल्लाह ताला ने मनवा सलवा नाजिल किया उनके ऊपर। मनवा सलवा जन्नत का खाना था, तो उस वक्त वहां पर उनको खाना सीधा जन्नत से आता था वहां पर उनको। और वहां मिस्र से निकल के यहाँ पर आ जाने के बाद तो सीधा जन्नत से खाने आने लगा हूँ। खाओ इन पाकीज़ा चीजों में से जो हमने तुम्हें अता की हैं, और उसमें ज्यादती ना करना, तो तुम पर मेरा गजब नाजिल होगा, और जिस पर मेरा अजाब नाजिल हो जाए तो वो पटक दिया गया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इन पाकीज़ा चीजों में से खाओ। खाओ इन पाकीज़ा चीजों में से जो हमने तुम्हें अता की हैं, और उनमें ज्यादती ना करना, ज्यादती नहीं करना, यानी कि सब मिल बांट कर खाओ। तुम पर मेरा गजब नाजिल होगा, अगर नहीं तो मेरा गजब नाजिल होगा तुम पर। जिस पर मेरा गजब नाजिल हो जाए तो वो पटक दिया गया। और मैं तो यकीनन बहुत ही माफ फरमाने वाला हूँ हर उस शख्स के लिए जिसने तौबा की, ईमान लाया। तो हर उस शख्स जो तौबा करेगा, ईमान लाया, अल्लाह ताला उनको माफ फरमाएंगे।
तौबा की, ईमान लाया, नेक अमाल किया और फिर सीधी राह पर चलता रहा। और ए मूसा, ये तुम्हें किस चीज ने जल्दी पर आमदा किया अपनी कौम को छोड़कर? मूसा ने अर्ज किया कि बस वो मेरे पीछे पीछे ही है। अरे मेरे परवरदिगार, मैंने तो तेरी तरफ जल्दी की ताकि तू राजी हो जाए। अल्लाह ने फरमाया, तो हमने तुम्हारे बाद तुम्हारी कौम को फितने में डाल दिया है और उन्हें गुमराह कर दिया है सामरी ने। तो जब वहां पर मूसा अलैहिस्सलाम वो लोग यहाँ पर आ गए थे, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वापस कोई तुर पर बुलाया ऊपर, और बुलाकर वहां पर तौरात दी। तौरात देने के लिए 40 दिन के लिए कोई तुर पर बुलाया। उसके पीछे वहां पर क्या हुआ, सामरी नाम का एक शख्स था। जब मूसा अलैहिस्सलाम ऊपर पहाड़ पर थे, तो उसने क्या किया, उन लोगों को गुमराह कर दिया, और कौम क्या हुई, एक बछड़े की यानी कि गाय के बच्चे की, एक बछड़े की पूजा करने लगी, इबादत शुरू कर दी। तो लौटे मूसा अपनी कौम की तरफ बहुत खतरनाक और सख्त रंजीदा हालत में। जब वो वापस लौट के देखे कि बछड़े की पूजा करिए, तो बहुत गुस्से में आए, रंजीदा हालत में। इन्होंने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, क्या तुमसे तुम्हारे रब ने अच्छा वादा नहीं किया था? तो क्या ये मदद तुम पर बहुत तवील हो गई थी, या तुम लोगों ने ये चाहा कि तुम पर तुम्हारे रब का गजब नाजिल हो? तो तुमने मेरे वादे के खिलाफ वर्जी कर डाली। तो मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में आकर उन लोगों से कहे कि ऐसा अभी तो रब तुम्हारा वादा करा था, अल्लाह ताला तुमको सब कुछ देने का, अभी वहां से बच के निकले हम लोग। मूसा अलैहिस्सलाम के ऐसा बहुत टाइम भी नहीं हुआ वहां से निकल कर, फिरौन के पास से निकल कर। 40 दिन मूसा अलैहिस्सलाम ऊपर गए थे, ऐसा बहुत सालों हो गए क्या, ऐसा जो भटक सालों के बाद जैसा लोग भटक जाते, सालों हो गए तो बस। आप बहुत साल भी नहीं हुए कभी तो, जो 40 दिन हुए, 40 दिन में ऐसा क्या भटक गए तुम लोग, आप बोलकर वो सा हो। क्या तुमसे तुम्हारे रब ने अच्छा वादा नहीं किया था? तो क्या ये मदद तुम पर बहुत तवील हो गई थी, यानी बहुत ज्यादा तो हो गई थी, या तुम लोगों ने ये चाह के तुम पर तुम्हारे रब का गजब नाजिल हो, या अल्लाह ताला का अजाब आना बोल के चाह रहे थे तुम लोग, क्या चाह रहे बोल के? तो तुमने मेरे वादे के खिलाफ वर्जी कर डाली। इन्होंने जवाब दिया कि हमने आपके वादे की खिलाफ वर्जी अपने इख्तियार से नहीं की, बल्कि हम पर बोझ था इस कौम के जेवरात का, तो हमने वो फेंक दिया। और उसी तरह सामरी ने भी कुछ फेंका। तो जेवरात यानी कि ज्वेलरी फेंक कर क्या किया, उससे सामरी ने क्या किया, उससे बछड़ा बनाया। बस उसने उनके लिए एक बछड़ा बरामद कर दिया, एक धड़ जिससे टकराने की आवाज आती थी। वो बछड़े में से, उस पुतले में से टकराने की, यानी कि वो बछड़ा पुकारता था, उस पुकारने की आवाज आती थी उसमें से। इन्होंने कहा कि ये है तुम्हारा माबूद और मूसा का माबूद, मगर वो भूल गया है। नौज़ुबिल्लाह, उसने कहा कि ये असल माबूद है तुम्हारा भी, मूसा का भी, मगर मूसा अलैहिस्सलाम भूल गए बोलकर नौज़ुबिल्लाह इस तरह से कहा उसने। तो क्या वो देखते नहीं थे कि वो बछड़ा उनकी तरफ कोई बात लौटाता नहीं था, और ना ही उसे उनके लिए किसी नुकसान का इख्तियार था और ना नफे का? कोई भी बात ही नहीं करता था वो बछड़ा, कैसा खुदा हो सकता बछड़ा, कोई बात नहीं करता, कुछ भी नहीं। और हारून उन्हें पहले ही कह चुका था, ए मेरी कौम के लोगों, हारून अलैहिस्सलाम उनके साथ थे। मूसा अलैहिस्सलाम किताब लाने, तौरात लाने के लिए ऊपर गए थे, लेकिन हारून अलैहिस्सलाम अभी भी नीचे उनके साथ थे। तो हारून उन्हें पहले ही कह चुका था, ए मेरी कौम के लोगों, तुम्हें तो इस बछड़े के जरिए से फितने में डाला गया है, ये फितना है तुम्हारे लिए, फितने में डाला जा रहा है, मत इबादत करो बोलकर हारून अलैहिस्सलाम कहे कौम से। और यकीनन तुम्हारा रब रहमान है, चुनांचे तुम लोग मेरी पैरवी करो और मेरी बात मानो, मेरी पैरवी करो और मेरी बात मानो। इन्होंने कहा, हम तो उसी पर एतकाफ करते हैं, रहेंगे, यहाँ तक कि मूसा खुद हमारे पास वापस आ जाए। मूसा अलैहिस्सलाम खुद वापस जब तक नहीं आते, हम लोग तो इसी की इबादत करेंगे बोलकर, इस बछड़े की इबादत करेंगे बोलकर कौम का कही। मूसा ने कहा, जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, तो उन्होंने कहा, ए हारून, आपको किस चीज ने रोका था जब आपने उन्हें देखा कि वो गुमराह हो गए? ये लोग गुमराह हो गए, देखे तुम यहीं पर थे, तुम कहीं को नहीं रोके उन लोगों को बोलकर हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा।
कि आपने मेरी पैरवी ना की या फिर आपने नाफरमानी की मेरे हुक्म की। हारून ने कहा, ए मेरी माँ के बेटे, आप मेरी दाढ़ी और मेरे सर को मत खींचे। मुझे तो ये अंदेशा था कि आप ये ना कहेंगे। तुमने बनी इसराइल में तफरीक पैदा कर दी और मेरी बात याद ना रखी। मूसा ने कहा, ए सामरी, तुम्हारा क्या मामला है? तो जब हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे, मेरे मैं क्या कर सकता हूँ बोल के पूछे, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की तरफ पूछ कर पलट कर पूछे, क्या कई वो करा भाई, तो ऐसा क्या मामला है बोल के पूछे। ए सामरी, तुम्हारा क्या मामला है? उसने कहा कि एक ऐसी मैंने एक ऐसी चीज देखी थी जो इन्होंने नहीं देखी। तो मैंने ले ली एक मुट्ठी मिट्टी की रसूल के नक्शपा से, तो वो मैंने फेंक दी और उस तरह मेरे नफ्स ने ये रास्ता मुझे बताया। तो एक मुट्ठी मट्टी उठाकर वो मुट्ठी फेंके वो बिछड़े के ऊपर उन्होंने, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आजमाया उनको और उस बिछड़े के पुतले में से आवाज निकाली। मूसा ने कहा, दफा हो जाओ, अब तुम्हारे लिए जिंदगी में यही सजा है कि तुम कहते रहोगे कि मुझे कोई ना छुए, और तुम्हारे लिए एक वादा है जिसकी हरगिज खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। और देखो अपने इस माबूद को जिसका तुम एतकाफ करते रहे हो, हम उसके साथ क्या मामला करते हैं, हम उसे जलाकर राख कर देंगे, फिर उसको समंदर में बिखेर देंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तुम्हारे लिए जिंदगी में सजा यही है कि तुम किसी को छूने नहीं देगा। वो क्या हुआ था, कहीं को नहीं छू सके कोई उनको, खैर अल्लाह आलम। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस बछड़े को हम लोग जला देंगे और राख को समंदर में फेंक देंगे। हकीकत में तुम्हारा माबूद तो सिर्फ अल्लाह है, जिसके सिवा कोई और माबूद है ही नहीं। उस पर हर चीज का इल्म हासिल है। तो ए नबी, उस तरह हम सुना रहे हैं आपको हालात उस जमाने के जो गुजर चुका है, और हमने आपको खास अपने पास से जिक्र अता किया है। ये जिक्र जो गुजर चुका है आपको नहीं मानता, हम अपनी तरफ से आपको सुना रहे हैं हालात बोलकर अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा। उसके बाद आगे अल्लाह ताला सूरह शोरा में इरशाद फरमाते हैं, हम्म, हम्म, और याद करो जब पुकारा था आपके रब ने मूसा को कि जाओ जालिम कौम के पास, कौम फिरौन के पास, क्या वो डरते नहीं? उसने अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, मुझे अंदेशा है कि वो मुझे झुठला देंगे, और मेरा सीना भखश्ता है और मेरी भखश्ता है और मेरी जबान भी रवान नहीं। लहजा आप ये पैगाम हारून की तरफ भेजें, और मेरे जिम्मे उनका एक जुर्म भी है, चुनांचे मुझे अंदेशा है कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। अल्लाह ने फरमाया, हरगिज नहीं। तो तुम दोनों जाओ मेरी निशानियों के साथ, हम यकीनन तुम्हारे साथ हैं, सब सुनने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम दोनों जाओ बोलकर बोले। तो तुम दोनों फिरौन के पास जाओ और उसे कहो कि हम रसूल हैं रब्बुल आलमीन के, भेज दो हमारे साथ बनी इसराइल को। फिरौन ने कहा कि क्या हमने तुम्हें अम, छोट हमने तुम्हें छोटे होते अपने यहाँ पाला नहीं था? फिरौन ने कहा कि तुमको हम पाले नहीं थे क्या? मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास पले बड़े थे। तो कहा कि क्या हम लोग नहीं पाले थे तुमको, अब आके हमारे खिलाफ इस तरह खड़े हुए सो बोलकर। और तुमने अपनी जिंदगी के कई साल हमारे यहाँ गुजारे हैं, और तुमने जो अपना वो काम किया जो किया, और तुम नाशुकरों में से हो। मूसा ने कहा, मैंने वो तब किया था जबकि मैं नावाकिफों में से था। फिर मैं तुम्हारे यहाँ से भाग गया जब मुझे तुमसे खौफ महसूस हुआ, फिर मेरे रब ने मुझे हुक्म अता किया और मुझे रसूलों में से बना दिया। और ये वो एहसान है जो तुम मुझे जुटला रहे हो, जिसके और तुमने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। फिरौन ने पूछा कि ये रब्बुल आलमीन कौन है? मूसा ने जवाब दिया, आसमानों और जमीन और जो कुछ
उन दोनों के माबीन है, उसका आका है, आका और मालिक, अगर तुम यकीन करने वाले हो। फिरौन ने अपने इर्द गिर्द लोगों से कहा, क्या आप सुन नहीं रहे? उसने कहा कि वो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे पहले अब्बा व अजदाद का भी रब है। फिरौन ने कहा कि तुम्हारा ये रसूल जिसे तुम्हारी तरफ भेजा गया यकीनन मजनून है। हम्म, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे अब्बा व अजदाद का भी रब है। फिर फिरौन ने कहा कि तुम्हारे ये रसूल जिसे तुम्हारी तरफ भेजा गया यकीनन मजनू है, यानी कि पागल है। उसने कहा कि वो मशरिक व मगरिब का भी रब है और जो कुछ उनके माबिन है उसका भी, अगर तुम अक्ल रखते हो। उसने कहा कि अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद माना तो मैं तुम्हें कैदियों में दाखिल कर दूंगा। फिरौन ने कहा कि मैं माबूद हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है। अगर तुम इस तरह से कहा कि कहे तो मैं जेल में डाल दूंगा, बोलकर फिरौन ने कहा। मूसा ने जवाब दिया, अगरचे मैं तुम्हारे पास कोई वादे चीज लेकर आया हूँ। वो बोला, तो उसे पेश करो अगर तुम सच्चे हो। चुनांचे मूसा ने अपना आसा डाल दिया तो अचानक वो एक जरी अब्दा बन गया। अब्दा यानी कि जहरीला चीज। पिछले हाथों में हमने देखा कि सांप था वो। जहरीले जानवर बहुत से होते हैं, सांप, बिच्छू और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें जहरीला जानवर बोलकर कहा गया, अब्दा बन गया, लेकिन पिछले आयतों में हमने देखा कि सांप था। और इन्होंने अपना हाथ खींचा तो वो सफेद चमकदार देखने वालों के लिए। फिरौन ने अपने इर्द गिर्द मौजूद सरदारों से कहा कि ये तो वाकईतन एक माहिर जादूगर है। हम्म, हम्म। ये चाहता है कि अपने इस जादू के बल पर तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल बाहर करे, तो तुम लोग क्या मशवरा देते हो? इन्होंने कहा कि उसको और उसके भाई को कुछ मोहलत दे दें और फिर दे तुम्हें शहरों में नखीब। वो ले आए आपके पास तमाम माहिर जादूगरों को। तो यूं जमा कर लिए गए तमाम जादूगर एक मुकर्ररा दिन के वादे पर। और लोगों से भी कह दिया गया कि क्या तुम जमा हो जाओगे ताकि हम पैरवी कर लें जादूगरों की, अगर वही गालिब रहे। तो जब जादूगर आ पहुंचे तो इन्होंने फिरौन से पूछा कि क्या हमें इनाम मिलेगा अगर हम गालिब आ गए? उसने कहा, जरूर, और तब तुम लोग यकीनन मुकर्रबीन में से हो जाओगे। मूसा ने उनसे कहा कि फेंको तुम लोग जो कुछ फेंकने वाले हो। तो इन्होंने फेंक डाली अपनी रस्सियां और लाठियां और कहा कि फिरौन की इज्जत की कसम, यकीनन हम ही गालिब रहने वाले होंगे। अब मूसा ने अपनी आसा फेंका तो एकाएक यानी कि एक एक कर कर वो निगलने लगा उस फरेब को जो इन्होंने बनाया था। तो सारे जादूगर बेख्तियार सजदे में गिरा दिए गए और कहने लगे कि हम तमाम जहानों के रब पर ईमान ले आए हैं, जो मूसा और हारून का रब है। फिरौन ने कहा, क्या तुम लोग ईमान ले आए हो उससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत देता? यकीनन ये तुम्हारा बड़ा है, जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। तो बहुत जल्द तुम्हें इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। मैं तुम्हारे हाथ और पांव काट डालूंगा मुखालिफ सिमत से, और तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। इन्होंने कहा, कोई परवाह नहीं, यकीनन हम अपने रब की तरफ ही लौटकर जाने वाले हैं। यकीनन हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमारे खताओं को बख्श देगा, कि हम ही सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं। और हमने वही कर दी मूसा की जानिब कि मेरे बंदों को रातों रात निकाल ले जाओ, यकीनन तुम्हारा ताक़ुब किया जाएगा। तो फिरौन ने तमाम शहरों में नक़ीब भेज दिया। यकीनन ये तो मुट्ठी भर लोग हैं और बिलाशुबा इन्होंने हमारे गुस्से को भटका दिया है भड़का दिया है, और यकीनन हम सब खतरे में पानी पड़ने वाले हैं। बस यूं निकाला हमने उन्हें बागात और चश्मों में से।
तो फिरौन को बागा चश्मों में से निकाल दिया और डुबो दिया, और खदानों और बहुत उम्दा कयामगाहों से, और उसी उसी तरह हवा और उन चीजों का वारिस हमने बनी इसराइल को बना दिया। तो इन्होंने उनका ताकुब किया सुबह होते ही। फिर जब दोनों गिरोहों ने एक दूसरे को देखा, तो मूसा के साथियों ने कहा कि अब तो हम पकड़े गए। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, यकीनन मेरा साथ मेरा रब है, वो जरूर मेरे लिए रास्ता पैदा करेगा। तो हमने वही की, मूसा की तरफ के जर्ब लगाओ अपने आसा के साथ समंदर को, अपनी लकड़ी लेकर समंदर पर क्या करो, मारो इस तरह से बोलकर अल्लाह ताला ने वही की। तो वो फट गया और हर हिस्सा एक बहुत बड़ा पहाड़ की तरह हो गया। पहाड़ की तरह हो गया यानी कि इस तरह से 2 इंच जब फट गया था, तो इस तरह से पहाड़ की तरह यहाँ से एक ऊंचा, यहाँ से एक ऊंचा हो गया, बीच से सूखा रास्ता बन गया मूसा अलैहि सलाम के गुजरने के लिए। और हम करीब ले आए वहीं पर दूसरों को भी, यानी कि दूसरों को भी, यानी कि फिरौन की कौम भी करीब आ गई थी। और हमने निजात दे दी मूसा को और उनके साथ जो कोई भी था, सबको निजात दे दिया। सब क्या किया, वो समंदर पार कर गए। फिर हमने गर्क कर दिया दूसरों को, फिरौन को क्या क्या गर्क कर दिया, डुबो दिया। यकीनन उसमें एक निशानी है, लेकिन उनकी अक्सरियत ईमान लाने वाली नहीं। और यकीनन आपका रब बहुत जबरदस्त निहायत रहम करने वाला है। और उनको इब्राहिम की खबर पढ़कर सुनाइए। यहाँ से फिर दूसरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू हो रहा है। और यकीनन आपका रब बहुत जबरदस्त निहायत रहम करने वाला है। आगे उसके बाद और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते सूरह मायदा में, आयत नंबर 20, और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के उस इनाम को याद करो जो तुम पर हुआ है, जब उसने तुम्हारी अंदर नबी उठाए और तुम्हें बादशाह बनाया, और तुम्हें वो कुछ दिया जो तमाम जहां वालों में से किसी को नहीं दिया था। और ये अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि याद करो जब कहा मूसा ने अपने कौम से, ए मेरे कौम के लोगों, अल्लाह के उस इनाम को याद करो जो तुम पर हुआ है, जब उसने तुम्हारे अंदर नबी उठाए और तुम्हें बादशाह बनाया, और तुम्हें वो कुछ दिया जो तमाम जहां वालों में से किसी को नहीं दिया। ए मेरी कौम के लोगों, अब दाखिल हो जाओ इस अर्ज मुकद्दस फलस्तीन में जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है, और अपने पेटों के बल वापस ना फिरना, तो नाकाम व नामुराद पलटोगे। तो जब फिरौन को डुबाने के बाद में ये लोग किधर आए थे, तो अ, हुआ क्या, वहां पर थोड़े दूर पर फलस्तीन की जमीन थी। वहां से मिस्र से समंदर पार कर कर इधर आए तो उधर आगे की तरफ बढ़े तो फलस्तीन की जमीन थी। तो वहां पर एक कौम बसी हुई थी। अल्लाह ताला ने कहा कि फलस्तीन की जमीन में दाखिल हो जाओ। इन्होंने कहा, मूसा, उसमें तो बड़े और जोर और लोग हैं, जोरदार लोग हैं, मतलब वो ताकतवर कौम जमा थी वहां पर। और हम उसमें दाखिल नहीं होंगे जब तक वो वहां से निकल ना जाए। हाँ, अगर वो वहां से निकल जाए तो फिर हम दाखिल हो जाएंगे। तो उनकी कौम ने कहा कि बहुत ताकतवर लोग हैं, खतरनाक लोग हैं, हम नहीं दाखिल होंगे, पहले वो लोग वहां से निकल गए बाद हम दाखिल होंगे, उसने कर उनकी कौम ने कहा दो अशखास ने जो अल्लाह का खौफ रखने वालों में से थे, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ने, और अल्लाह ने भी उन दोनों पर इनाम किया था, तुम उनके मुकाबले में दरवाजे के अंदर घुस जाओ, और जब तुम उसमें दाखिल होगे तो लाजमन तुम गालिब हो जाओगे, और अल्लाह पर तवक्कल करो अगर तुम मोमिन हो। तो उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने कहा कि तुम दोनों दाखिल हो जाओ। अ,
तो लोगों ने पहले कहा कि तुम दोनों दाखिल हो जाओ, तो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून ने कहा कि तुम दोनों जाओ, चले जाओ बोलकर बोले, जाओ तुम दोनों लड़ो, हम लोग नहीं लड़ते बोलकर बोले। इन्होंने कहा, ए मूसा, हम तो हरगिज इस शहर में दाखिल नहीं होंगे जब तक कि वो उसमें मौजूद हैं। बस तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और जाकर खिताल करो। हम तो यहाँ बैठे, हम यहाँ बैठे हुए, तुम जाओ और तुम्हारा रब जो, दोनों लड़ो उन लोगों से। जब जीत हो जाएंगी तो हम लोग आ जाएंगे। मूसा ने अर्ज किया, परवरदिगार, मुझे तो इख्तियार नहीं है सिवाय अपनी जान के और अपने भाई हारून की जान के। तो अब तफरीक कर दे हमारे और इन नाफरमान लोगों के दरमियान। तो अब ये लोग नहीं सुन रहे कि ये लोग कह रहे जाओ जाकर तुम लड़ो, मेरे को हारून के अलावा किसी पर इख्तियार नहीं है, तो अब तुझ फैसला कर बोलकर मूसा अलैहिस्सलाम कहे अल्लाह ताला से। फरमाया, अब ये अर्ज मुकद्दस हराम रहेगी उन पर 40 साल तक, ये भटकते फिरेंगे जमीन में। तो ए मूसा, आप अफसोस ना करें उस फासिक कौम पर। तो अब 40 साल तक ये कौम क्या होंगी, वही रेगिस्तान में, वहीं पर सुनसान जगह में क्या होंगी, 40 साल वहीं भटकेंगे। अब ना फलस्तीन में दाखिल हो सकेंगे ना वापस मिस्र जा सकेंगे, वहीं पर भटके रहेंगे ये लोग बोलकर ये सजा दी है अल्लाह ताला उनको। हम्म, तो यही 40 साल के पीरियड में ही मनवा सलवा भी आया, सब हुआ, ये सब वाक़े पेश आए। अब उसके बाद आखिर जब ये सब हो गया तो यही 40 साल के टाइम पीरियड में ही मूसा अलैहि सलाम को मौत भी आ गई थी। अब उनके मौत का वाक़या किस तरह से देखेंगे। मौत का वाक़या कुरान में नहीं है, एक हदीस में है। यही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1339। अभी सही बुखारी 1339। तो किस तरह से मूसा अलैहि की मौत का वाक़या देखते हैं। मलिकुल मौत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजे गए। वो जब आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक जोर का तमांचा मारा। मूसा अलैहिस्सलाम क्या करे, गुस्से वाले थे, पहले से भी देखे थे, सिर्फ एक पंच में आदमी मर गया था उनके, उतनी ताकत भी थी उनका, नहीं एक पंच मारे आदमी मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक जोर का तमाचा मारा, मौत के फरिश्ते को तमाचा मार दिए, तमाचा मारा और उनकी आंख फोड़ डाली। मूसा अलैहिस्सलाम उनकी आंख फोड़ दी है उस फरिश्ते की, मौत के फरिश्ते की। वो वापस अपने रब के हुजूर में पहुंचे और अर्ज किया। तो मौत का फरिश्ता वापस अल्लाह ताला के पास गया और फरमाया कि या अल्लाह, तूने मुझे ऐसे बंदे की तरफ भेजा जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने उनकी आंख पहले की तरह कर दी, पहले की तरह कर दी, ठीक कर दी, और फरमाया कि दोबारा जा और उनसे कहे कि आप अपने हाथ एक बैल की पीठ पर रखिए, एक बैल की पीठ पर हाथ फेरिए अपना, और पीठ के जितने बाल आपके हाथ तले आ जाए उनके हर हाल के बदले 1 साल की जिंदगी दी जाएगी। जितने भी बाल आपके पीठ के ऊपर आ जाएंगे, उस बैल के पीठ के ऊपर इस तरह से हाथ फेरिए, जितने भी बाल आएंगे उसकी हर एक बाल के बदले एक बाल 1 साल की जिंदगी देंगे आपको। 100 बाल आ गए तो 100 साल की जिंदगी, इस तरह से कहा। तो मूसा अलैहिस्सलाम 1 साल की जिंदगी दी जाएगी मूसा अलैहिस्सलाम तक। जब अल्लाह ताला का ये पैगाम पहुंचा तो मौत के फरिश्ते ने ये पैगाम पहुंचाया, तो आपने कहा कि ए अल्लाह, फिर क्या होगा, तो उसके बाद क्या होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर भी मौत आनी है, उसके बाद उतने साल के बाद मौत आएंगी तुम्हारा, तुम फिर लो उतने साल जिंदा रहेंगी, उसके बाद मौत आएंगी फिर कैसा भी। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, तो अभी क्यों ना आ जाए, जब अगर मैं फेल या उतने साल की जिंदगी दे दिया मेरे को, उतने साल के बाद भी अगर मौत ही आनी है, तो जब एंड ऑफ द डे आखिर मौत आनी है, तो अभी ले लेके जाइए बोलकर बोल दिया। जब आनी है मौत तो अभी को ले लीजिए, अभी क्यों ना आ जाए। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें एक पत्थर की मार पर अर्श मुकद्दस से करीब कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने से मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अर्ज मुकद्दस के करीब कर दिया जाए, फलस्तीन में करीब कर दिया जाए, यरूशलेम के करीब कर दिया जाए, अर्ज मुकद्दस से करीब कर दिया जाए बोलकर दुआ की। अबू हुरैरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं वहां होता तो तुम्हें उनकी खबर दिखाता,
کہ لال ٹیلے کے پاس راستے کے قریب ہے. لال ٹیلے کے پاس ایک راستے کے قریب کہیں پر ان کی خبر ہے. موسیٰ علیہ السلام بولے اگر وہاں پر ہوتا تو دکھاتا تھا تم کو بول کر کہا انہوں نے. تو یہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی اوور آل سٹوری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.